ایشو ہے، اس پہ بات کرنی تھی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے صوبائی و مرکزی ساتھی یہاں آئے، تشریف لائے، اور دو نکاتی ایجنڈا تھا ہمارا۔ مرکزی تحریک جو تحریک ہے، اس تحریک کو کس طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اس میں تو سب سے پہلے یہ لفظ ہے کہ جو اس وقت بجٹ پیش ہوا ہے اس کو ہم کلتاً اس کو ہم رد کرتے، مسترد کرتے، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ملازمین کو 1% بھی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ پچھلے جون سے اس جون تک مہنگائی کا ریشو دیکھیں، کتنے فیصد مہنگائی بڑھی، اور آپ ریلیف کیا دے رہے ہیں ہمیں تنخواہوں میں۔ آج کل جو چیز مجھے 5 کا ملتا تھا، آج وہ مجھے 50 کا مل رہا ہے، لیکن میری انکم اسی جگہ پہ اپنے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل قومی مالیاتی اداروں IMF کے کہنے پہ یہ بجٹ بنایا گیا ہے۔ ہمارے یہ حکمران ان کے مفادات کے محافظ ہے، اور ہماری یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اختیار جن کے ہاتھ میں وہ سب باشعور لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بے اختیار حکومت ہے، نہ ان کو حکومت چلانے کا تجربہ ہے، نہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، نہ یہ کسی ایسی جدوجہد سے پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ یہ نرسری میں اچانک ان کو پالا، اللہ کے گھروں میں بٹھایا۔ اس سے اندازہ کرے کہ اس کو عوام کے دکھ، درد، پریشانی اور لوور مڈل کلاس کے پریشانیوں کا احساس نہیں۔ آج اس ملک کا پسا ہوا طبقہ چیخ رہا ہے، آج اس ملک کا چھوٹا ملازم چیخ رہا ہے، مہنگائی کے تلے دب گیا، وہ اپنی اخری سانسیں لے رہے، اور ہمارے حکومت نے 1% بھی تنخواہ بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ یعنی آپ بے حسی کا اندازہ لگائیں، بے شرمی کا اندازہ لگائیں آپ کہ اتنے بے حس، اتنے بے شرم، آپ دفاعی اخراجات کے اوپر دبادب فنڈ لگا رہے ہیں، آپ باقی اخراجات کو بڑھا رہے ہیں۔ اس ملک کا ایک ایک شہری آپ کا دفاعی سپاہی ہے، اس کو بھوکا مار رہے، اس کی قوت خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے، اس کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ آج اس ملک کا ملازم، اس ملک کا محنت کش، قوت خرید ختم ہونے کی وجہ سے فاقوں اور خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کا احساس نہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں، اس لیے کہ وہ عوام کے ہے نہیں، وہ عوام کے اندر سے نکل کے نہیں گئے ہیں۔ وہ جہاں سے نکل کے گئے ان کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے، وہ جہاں کے لوگ ہیں وہیں کو خوش رکھا ہے، عوام کے لوگ نہیں۔ عوام جائے بھاڑ میں، لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، اگر یہ صورتحال رہا، عوام کے اندر انارکی پھیل جائے گی، خودرو کے تحت یہاں لوگ سر اٹھائیں گے، خودرو کے تحت انقلاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کایا پلٹ کے رکھ دیں گے ان حکمرانوں کا، یہ ان کی بھول ہے۔ جب لوگوں کے گھروں میں فاتح آئیں گے، لوگوں کے لوگ خودکشیوں کے پھندوں پہ جھولیں گے، تو پھر یہ حکمران بھول جائے کہ لوگ سکون سے گھر میں بیٹھیں گے، باہر نکالیں گے، اور ایک خودرو کے تحت یہ انقلاب آئے گا۔ فرانس کے انقلاب آپ کے سامنے ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب لوگ بھوک سے مر گئے، جب لوگوں کی معاشی حالات اس حد تک پہنچ گئے، لوگوں نے نہ گولیوں کی پرواہ کی، نہ لاشوں کی پرواہ کی، اپنی لاشیں گرائی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اپنے مقاصد کو حاصل کیے۔ آج بھی وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے، آج اس ملک میں انارکی کی طرف سارا ملک جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مرکزی بجٹ۔ مرکزی بجٹ پہ انشاءاللہ تعالی ہم بہترین ایک تحریک چلائیں گے، اور عمران خان اور اس کی ٹیم اور اس کے بیک پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ اس ملک کا ملازم، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا مزدور کتنی قوت رکھتا ہے، وہ آپ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ باقی جہاں تک ہماری BNC کی تحریک ہے، چونکہ ابھی تک صوبائی حکومت کا شیڈول جاری نہیں ہوا، بجٹ شیڈول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، ہم نے اپنے ساتھیوں کو 18 تاریخ کا کہا ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں وہاں سے ایک شیڈول ملے گا 18 تاریخ کے 22 ہے 20 ہے جو بھی ہے، اس تاریخ کو ہم اسمبلی کے سامنے جائیں گے، اس لیے کہ 3 معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، 3 ان ریٹرن معاہدے، زبانی نہیں۔ پہلا معاہدہ ہوا 4 وزرائے ہمیں اسمبلی کے سامنے سے رات کو انہوں نے منت سماجت کر کے اٹھایا، ہم نے کہا ہمیں بھروسہ نہیں، ہمیں تحریری طور پہ دو، انہوں نے ہمیں ریٹرن معاہدہ دی، ریٹرن ایگریمنٹ کی ہمارے ساتھ کہ آپ کچھ دن ہمیں ٹائم دے دیں، اسپیس دے دیں، آئین سازی میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر
वो वक्त गुजरा, मुद्दत गुजरी, उसके बाद हम दोबारा निकले, फिर वज़रा हमारे पास आए, दूसरे वज़रा, दूसरे चेहरे हमारे पास आए। उन्होंने फिर मिन्नत समाजत वो जो इनका अंदाज होता है उस तरीके से हमें फिर मजबूर किया। फिर हमने इनको टाइम दिया, 2 मायदे, फिर खिलाफ वर्जी, फिर हम तीसरी मरतबा निकले। तीसरी मरतबा जब हम निकले तो 2 दिन हम असम्बली के सामने, हमारे साथ खवातीन भी थी, जो हमारे खवातीन जो लड़कियां या स्टूडेंट है वो भी थी, और हमारे स्टूडेंट भी थे, और मुलाजिम भी थे, मेहनत कश तबका भी था। हम 2 दिन सड़क पे बैठे रहे। 2 दिन के बाद चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने हमें अपने चैम्बर में बुलाया। हमसे पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपके क्या ग्रीवेंसेस है। हमने उनको पॉइंट टू पॉइंट सारे अपने मसले बता दिए। उन्होंने कहा कि आपके ये मसले हल हो जाएंगे, ये इश्यूज आपके सारे हल हो जाएंगे, आप धरना खत्म करें। हम आपके पास क्रेडिबल लोग भेजेंगे जिनके जुबान पे भरोसा किया जा सकेगा। हम आपके पास CS भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी भेजेंगे, वो आपके धरने में आके बात करेंगे, आपसे कमिटमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपना धरना खत्म कर दें और टाइम दे दें ताकि काम हो जाए। हमने कहा ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ज़ाहिर है वो सूबे के एक ऐसे मनसब पे बैठे जहाँ इंसाफ के उम्मीदें रखी जा सकती थी। हम उठ गए, हम शाम को आए तो शाम को चीफ सेक्रेटरी तो नहीं आया, उनके कहने पे DC कोयटा आया, और उनके बादीनी साहब, उनके कहने पे सेक्रेटरीट उस वक्त के और स्पेशल सेक्रेटरीट और शेख बलोच एडिशनल एडवोकेट जनरल आए। उन्होंने हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया कि 40 दिन का हमें टाइम दे दें, 40 दिन के अंदर अंदर हम एक्ट में तरमीम करके आपके जो कॉलेज के साथ जो जुल्म हुआ, आपको दोबारा सूबाई गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम दिया जाएगा ताकि आपके ग्रीवेंसेस खत्म हो। और साथ ही ये मायदा हुआ कि मीनवाइल इस दौरान कोई भी इंतकामी कार्रवाई वाइस चांसलर नहीं करेगा। लेकिन हमने उस मायदे का पास रखा, हम अपने जुबान पे कायम रहे। हमने पुरअमन तरीके से धरना खत्म किया, हम आके बैठ गए। उसके बाद वाइस चांसलर ने हमारे अंदर तोड़ फोड़ शुरू की और हमारे अंदर एक कुछ लोगों को इस तरह गलत किस्म के रुझानात को प्रमोट करना शुरू कर दिया और इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रमजान शरीफ में हमने फिर कैंप लगाया आखिरी अशरे में, लेकिन हमारा टाइमिंग था रात 9 से 12, जो बिल्कुल हमारा प्राइवेट और पर्सनल टाइम होता है। उसमें हम स्ट्रगल भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, उसमें कोई सरकारी उमूर मुतासिर नहीं होते। उसके पादाश में हम लोगों के 4 बंदों की तनख्वाहें बंद कर दी उन्होंने, जिसमें हमारा यूनिट सदर है, जिसमें मैं हूं, जिसमें हमारे 2 साथी और हैं। रात 9 बजे से 12 बजे तक आप अपनी क्लिनिक पर बैठ के लाखों रुपया कमाओ, मैं अपने एहतजाज न कर सकूं, ये कहां का इंसाफ है। आप एज VC पाबंद हो, क्या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आप पे पाबंदी है, लेकिन आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लाखों रुपया कमा रहे हो, आप मुकम्मल वायलेशन कर रहे हो, और मैं यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह बंद है। या तो बहुत जोरावर हो, या कोई कानून नहीं है, या कोई अंधा कानून नहीं है। फिर जब अंधा कानून होगा फिर जोर को जोर दिखाएंगे, जोर को जोर दिखाएंगे। फिर ये कोई तस्वर हमसे न करे, ये कोई इस खुशफहमी या गलतफहमी में न रहे कि ये तहरीक दम तोड़ चुका, ये कमजोर हो गए। हम इनको अपनी ताकत दिखाएंगे जो हमारे साथ जुल्म करेगा, हम दिखाएंगे क्योंकि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने फैसला किया, BMC रेस्टोरेशन मूवमेंट के एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया कि हम दोबारा तहरीक पे निकलेंगे, क्योंकि हमारे दोनों हाथ बांध दिए और इसको खुला छूट दे दिया। मायदों की पासदारी दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफैन उसकी पासदारी करती है। उठाए, शरीयत में उठाए, जिस हिसाब से उठाए फरीक, दोनों फरीक पाबंद होते हैं, एक तरफा पाबंदी कभी नहीं होती। हमें पाबंद किया कि आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप चुप करके बैठे रहेंगे, और खुद उसको खुली छूट दी, बदमाशी कर रहे, दंदनाता कर रहे, अपने कुत्ते उसने छोड़े, वो हमारे बुजुर्गों के गरीबानों में आके हाथ डाल रहे। तमाम हमारे इज्जतदार लोग बैठे, हमारे 500 का मजमा बैठे, और ये अपने बंदे छोड़ रहे हैं, वो आके हमारे बुजुर्गों के गरीबानों में हाथ डाल रहे, हमारे सफेद रिशों के। तो फिर हमसे क्या तवक्को रखता है कि जब हमारी बेइज्जती होगी हम आपकी इज्जत का पास रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। हम अपने मायदे पे नहीं कायम। आपने मायदा तोड़ा,
हमसे कोई गिला नहीं कर सकता है। अब हम तोड़ के बताएंगे आपको, इस बजट सेशन में हम आपको बताएंगे कि मायदा तोड़ने के बाद आपके साथ हम क्या करते हैं। हमारी खामोशी का मतलब कमजोरी कतन नहीं है। 4-5 लोगों के इधर उधर होने से, एजेंटों से, मीर जाफर मीर सादिक की जाने से तहरीकें कभी नाकाम नहीं हुई। आप कोई भी तारीख उठा के देखे, मजदूर तहरीक उठा के देखे, हमेशा उसके अंदर दलाल पैदा हुए। आप कौमी तहरीकें उठा के देखे, हमेशा दलाल पैदा हुए। आप इस्लामी तारीख उठा के देखे, हमेशा मुनाफिकीन पैदा हुए जो सफ अव्वल में खड़ो के नमाज पढ़ते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। जिस तारीख पे आप नजर दौड़ाएं आपको वहां मुनाफिकीन जरूर मिलेंगे। आज हमारे साथ भी मुनाफिकीन है, लेकिन हम मुनाफिकीन की परवाह नहीं करते। हम जुर्रत के साथ लड़ेंगे और हम बताएंगे कि हम क्या चीज है। अगर इस बजट के दौरान या इससे पहले हमारे मसले हल न हुए और वीसी की इसी तरह बदमाशी रही तो जो हम करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। हम अब ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हम जो प्रोग्राम देंगे उसकी बुनियादी इलाके हम रख देंगे। और जिन लोगों ने आके हमारे सफेद रीश बुजुर्गों के गिरबान में डाला है, हम उनको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे, अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे। जी साहब, इस बारे में तहरीक के हवाले से अभी ताज़ा इत्तला आई है कि वाइस चांसलर ने, चूँकि यहाँ पर जो हॉस्टल है वहाँ पर हाउस ऑफिसर कायम करते हैं जो इस वक्त कोरोना के हालात में भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने हॉस्टल की गैस बिजली बंद करके हाउस ऑफिसरों को हॉस्टल से बेदखल कर दिया और साथ साथ में हॉस्टल में मौजूद तमाम स्टाफ को कहा है कि आप अपने घरों में आराम से बैठ जाए, आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों पेश आया कि एकदम से स्टाफ को भी घर में बिठा दिया? क्या कोरोना का इतना खौफ आ गया या ये हमारे जो 18 तारीख के धरने का प्रोग्राम का? और मैं तो समझता हूँ कि यही इसी की कामयाबी है कि उन्होंने इसको ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया है। इस बारे में आपके मुलाजमीन को घर भेजना कि आपको ड्यूटियों के लिए मत आएँ और हॉस्टल को डॉक्टरों को वहाँ से बेदखल करना, इस पर आप थोड़ा सा अपना। ये बासित साहब, ये इस बात की दलील है कि ये डर गया, ये उसने स्टैंप लगा दी इस चीज के पर, वो डर गया, वो खौफजदा हो गया। ये इंतहाई कमजोर, खोखला और बुज़िल वीसी है, ये डर गया। इसको पता था कि अगर मैंने हॉस्टल खुला छोड़ा, स्टूडेंट और मुलाजिम इकट्ठे होके एक फ्रंट की शक्ल में सामने खड़े होंगे, लेकिन स्टूडेंट जहां भी रहेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इंटैक्ट है, हमारे अंदर कोई दूरियां नहीं, हम इंटैक्ट है। स्टूडेंट घर में रहे, स्टूडेंट हॉस्टल में रहे, स्टूडेंट हमारे साथ रहेंगे। हम, ये तहरीक हमारी मुश्तरका तहरीक है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी इसमें शामिल लोग हैं, वो सब साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही बजट अनाउंस होता है फिर हम इसको दिखाएंगे स्टूडेंट कहाँ से उबर के आते हैं और मुलाजमीन कहाँ से निकल के आते हैं, इसको हम बताएंगे उस दिन। ये कमजोर इंसान है, ये जो हॉस्टल बंद कर देना एक यजीदी अमल है। आपने उनकी बिजली काट दी, आपने उनका पानी बंद कर दिया, आपने तो यजीद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने लड़कियों को बेदखल कर दिया, बच्चियां जो दूर दराज जिलों से हैं उन पर आपने बिजली बंद कर दी, उसके आपने पानी बंद कर दिया। आपने तालिब इल्मों के ऊपर, जिनके पास जो इनकम जिनके पास नहीं है, जो कमाने वाले नहीं है, माँ बाप के ऊपर उनका जो है ना वो डिपेंड करते हैं, उन वो न होटलों में रह सकते हैं, न कोई किराए का फ्लैट ले सकते, उन पे आपने रिहाइश की जगह बंद कर दी। तो ये इसका मतलब है कि आप इंतहाई कमजोर इंसान, आप थोड़े से लोगों से डर गए हो, आप थोड़े से लोगों से डर गए हो। आपके अंदर जो ये अकड़ है ये सारा खोखला है, अंदर से खोखले हो। तो इंशाल्लाह बजट के दिन, चाहे वो 18 को हुआ, 19 को हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, बजट के दिन हमारा फैसला कुल मरला होगा। उस दिन इंशाल्लाह डिसाइसिव मोड होगा कि उस दिन फिर क्या होता है। फिर वाइस चांसलर अपना जोर लगाए और हम अपना लगाएंगे। हमारे सीने होंगे, उनके गोलियां होंगी, हमारे सर होंगे, उनके डंडे होंगे। हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम पूरा मन एहतजाज करेंगे, लेकिन जबर बर्दाश्त करेंगे। जबर से न पहले डरे हैं न भी डरेंगे। और उनको अभी कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से कहते हैं कि जो मर्जी है कर लो, जो मर्जी है अपने क्लास से इख्तियार कर लो। खुदा की कसम हम आएंगे, अपने सर पेश करेंगे, अपने सीने पेश करेंगे, जो आपसे हो सकता है आप करो। हम आएंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसी मेंबर को, किसी मुलाजिम को, वो सफेद रीश जो हमारे साथ यहाँ बर्फ में बैठे हुए थे, वो सफेद रीश जो हमारे साथ हवालात में बैठे थे, हम उसको मायूस नहीं करेंगे। हमारे वो लोग जो रिटायर हो गए हैं या जो मर गए हैं, जिनके घर, जिनका आप न ग्रेजुएटी दे रहे हैं,
न उनका माना इनकम दे रहे हैं, आप उनको भूख से मार रहे हैं। आप इतना जुल्म करोगे तो आपका हाथ कोई नहीं मरोड़ेगा। आपका हाथ हम रोकेंगे, जरूर रोकेंगे, इतने जोरावर नहीं हो हम आपको रोकेंगे। उन गरीबों का हक के लिए हम आपके गिरबान न डालेंगे और लेंगे आपसे आके इंशाल्लाह। ये उनकी पूरी जिंदगी एक सरकारी मुलाजिम जो मुलाजमत करता है वो इसी आशय पे करता है कि रिटायरमेंट के पास एक करीब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, 30 लाख 40 लाख, जिससे मैं अपने बच्चों की कफालत करूंगा, कोई बेटी की शादी करो। लेकिन जब वो भी अपना दें, आपने तो उसके गले पे हाथ दबा दिया, आपने उसका सांस रोक दिया, तो इस तरह तो हम नहीं होने देंगे। वाइस चांसलर को हम बता देना चाहते हैं कि इस हद तक आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको रोकेंगे। आप बुलाओ जिस तरीके से, जो भी आपके रोकने के हरबे आप बुलाओ, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अब इस सीट पे या आप रहोगे या हम इस कॉलेज में रहेंगे, आपको हम इस सीट पे नहीं बैठने देंगे। आप एक मुतनाज़ा शख्सियत हो, मुतनाज़ा शख्सियत, आप फरीक बन चुके हो हमारे लिए, आप मुकम्मल फरीक बन चुके हो, और हम आपके मातहत काम नहीं करेंगे। फौरी इमीडिएट रिलीफ हमें यह कि फौरी तौर पर वीसी और रजिस्ट्रार को बरतरफ करो और एक्ट में अमेंडमेंट के लिए आप एक्ट को टेबल करो, ये हमारा डिमांड है।